This is known as change of axis. Now, what do you understand by change of axis? एक्सिस को चेंज करते हैं। एक्सिस के चेंज दो लोगों में बराबर है। वन इज ट्रांसलेशनल, वन इज रोटेशन। ट्रांसलेशन मीन्स यू आर पुशिंग इट, জাস্ট ধাক্কা দিচ্ছ, নো অ্যাঙ্গেলে কোনো টার্ন, টুইস্ট এন্ড টার্ন হবে, something like this or this fashion. Suppose this is your original x and y, and you are now pushing it to a new point. Suppose here, this is your new x, new y. So your origin is pushed from this position to this position. This was in 0, 0. And with respect to this, this is 0. And this is also 0, 0. This is also 0, 0 with respect to this white one. But with respect to the older one, it is pushed into HK. Origin is pushed into HK. এখন নতুন coordinate system এ this HK will treat like a 0, 0. So this is known as translation. You are translating, just push করছো, ধাক্কা দিচ্ছ। And what is your rotation? Rotation means you are rotating it. Suppose this is your original x and y, and now you are rotating it by an angle. Suppose this is an angle of theta. So you rotate, so this becomes x and this becomes y. So basically your original origin and new origin, they are kept in same place. 0, 0 is kept in same place. In translation, 0, 0 will move. In rotation, 0, 0 will not move. But in general, we can add these both to, that is known as general transformation, means it can have both these. It can have a combo of translation and rotation. That is also possible. ट्रांसलेट भी हुआ, फिर वहां जाके घूम गया, तो बोथ आर अलाउड, ठीक है ना, एक पॉइंट में ट्रांसलेट किया। तो दिस टॉपिक इज डिस्कशन ऑन दिस वन, दैट इज नोन एज जनरल ट्रांसफॉर्मेशन। जनरल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे हॉस्पिटल में जनरल वार्ड होता है, हर एक पेशेंट के लिए कॉमन वार्ड, मतलब इसमें कुछ भी हो सकता है, और इसमें स्पेसिफिक हो जाएगा तो अलग बात है, इसमें दोनों हो सकता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जनरल ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, हो गया ये। So that is all written in your first one, translation, rotation and general. Now we are starting with translation. Translation means shifting a origin to some other point without changing the direction of the axis. Direction नहीं घूमेगा, मतलब x जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में रहेगा y। रोटेशन में जैसे घूम जाता है, वेक्टर घूम गया, उसमें वेक्टर नहीं घूमेगा। तो जनरली इसमें हम लोग करते क्या है, जैसे ये पॉइंट से हम लोग शिफ्ट होके, मान लो कि हम 0, 0 पहले मेरा ओरिजिन था, नाउ आई वांट टू मूव टू h, h कहीं पे भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट लेके करना, एंड दिस इज माय न्यू एक्सिस सिस्टम। नाउ वी शिफ्ट दिस फ्रॉम ओल्ड एक्सिस टू न्यू एक्सिस। आवर न्यू एक्स विल बी इक्वल टू, सो दिस इज योर h एक्चुअली, दिस पोर्शन, एंड दिस लेंथ इज k। सो व्हाट यू एज्यूम, यू कंसीडर इट लाइक दिस, তুমি এটা কিভাবে মনে রাখো যে your new axis has been, new x-axis आगे x-axis से has been reduced by h। पहले x-axis यहाँ से यहाँ तक था, from here it was up to this much. Now your x-axis start from here to this much. So you can think that your x is reduced by an amount h, and new y is also reduced by an amount k. Okay, which gives you small x equal to capital X plus h, and small y is equal to capital. You have seen a little bit of this one in parabola, circle shifting, আমরা দেখছিলাম origin shifting, it can go any arbitrary point. So that is the idea. तो प्रथमটা এটাই বললো। So to transform it, what we will do, we will change, जहाँ जहाँ पुराना x पुराना y है उसमें ये सब वैल्यू डाल देंगे। So the equation will change to a, shape will remain same, सर्कल तो सर्कल ही रहेगा, लेकिन इक्वेशन बदल जाएगा, समझ में आया ना। जैसे यहाँ पर कुछ एक सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, जैसे यहाँ मान लो क्या मान लो, जैसे यहाँ पर एक सर्कल है, तो इसका क्या होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मान लो 5 स्क्वायर। अब ये वहां से ये नहीं रहेगा, क्योंकि वहां से सेंटर तो चेंज हो गया, तो वहां पर से इसका सेंटर चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, समझ में आया। सो दैट इज द आइडिया। बट बेसिक स्ट्रक्चर, सर्कल, सर्कल का रेडियस, स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन का स्लोप, लेंथ, डिस्टेंस, दीज आर प्रॉपर्टीज, इनहेरेंट प्रॉपर्टीज। पैराबोला का इसेंट्रिसिटी, पैराबोला का लेटस रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन बदल जाएगा, लेकिन डिस्टेंस, सारे इक्वेशंस और कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएगा।
लेकिन जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स वो सेम ही रहेगा, जो उसका मेन प्रॉपर्टीज है दैट विल नेवर चेंज। ठीक है, ये ध्यान है। इसी को लिखा है न्यू कोऑर्डिनेट हो गया। ट्रांसलेशन इज यूज्ड फॉर रीडिंग जनरलाइजेशन एनी कार्बन डिजायर्ड फॉर्म। जनरली ट्रांसलेट करके हम कभी कभी क्या करते हैं, रास्ता निकाल लेते हैं, ठीक है ना, नया रास्ता बनाने के लिए ट्रांसलेशन करके हम इक्वेशंस को नया फॉर्म दे देते हैं, ठीक है ना, कुछ चाहिए होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्म है कैसे करते हैं, जैसे मान लो एक एग्जांपल देख लो तब तुम्हें आगे का पता चल जाएगा। जैसे मान लो मेरा एक इक्वेशन था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू, चलो डबल स्क्वायर देने से मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। अभी मान लो मैंने इसको 2 में शिफ्ट किया, तो नया y इज इक्वल टू प्लस 1 कर देते हैं, कैपिटल Y प्लस 1, नया x इक्वल टू कैपिटल X प्लस 1, इसमें डालते हैं कैपिटल X प्लस 1 होल स्क्वायर कैपिटल Y। मान लो 1 1 में गया, अच्छा 1 1 में एच के में जाते हैं, एच क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई प्लस के प्लस एक्स वाई प्लस एक्स के प्लस एच वाई प्लस एच के माइनस 1। अभी मानो कि मेरा ये चाहते कि इसमें कुछ हम ऐसा जगह में इसको लेके जाना चाहते हैं ताकि कांस्टेंट टर्म ना रहे, कुछ ऐसा इक्वेशन बनाना चाहता है कांस्टेंट टर्म नहीं रहने का क्या मतलब हुआ, कांस्टेंट टर्म नहीं होने से वो ओरिजिन से पास करता है, मतलब ऐसा जगह में लेके जाओ कि वो उसका ओरिजिन से वो पास हो जाएगा कांस्टेंट टर्म में, कुछ इस टाइप का। जैसे कांस्टेंट तो थोड़ा इजी हो गया विजुअलाइज करने के लिए, कुछ और भी हो सकता है, जैसे आपने को y वाला टर्म नहीं चाहिए, जैसे मान लो आपने को xy टर्म नहीं चाहिए, हमको ऐसे जगह में शिफ्ट करना है कि xy टर्म नहीं चाहिए, तो xy टर्म कहाँ से आया ही नहीं क्या, कहाँ पर आया, अच्छा इसमें तो ये है ना xy टर्म, ये चेंज होने का, क्योंकि इसके साथ h के नहीं है ना, कुछ आया नहीं, तो ये बदलने का नहीं करो, ठीक है ना, कुछ और चाहिए होता है तो x मतलब एक्स वाई टर्म इसमें से हम निकाल नहीं सकते, तो उसको देख के फायदा नहीं। मान लो कि कांस्टेंट टर्म, इसका कांस्टेंट टर्म ऐसा करना चाहते हैं कि कांस्टेंट टर्म गायब कर दे, तो कांस्टेंट टर्म कहाँ कहाँ है, ये वाला फिर कहाँ है, हाँ ये कौन सा, हाँ, ये वाला, तो हम ये सबको जीरो कर देंगे, हम ऐसा एच के चाहते हैं कि ये सब जीरो हो जाए, अगर ये जीरो हो जाएगा, ऐसा कुछ एच के हम मार्केट से निकाल पाए जिसको सॉल्व करने के बाद जीरो आ गया, तो मेरा क्या हो जाएगा, तो हमको पता चल जाएगा अच्छा उस पॉइंट में लेके जाने से कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, समझ में आ रहा है, तो ऐसे ही करते हैं हम लोग। तो ऐसा ही एक चाहत 3 नंबर में उनको चाहिए, नंबर 3 में उनको ऐसे एक चाहत आया, मन में इच्छा आया, मन में ख्याल आया कि ये तो अपना सेकेंडरी इक्वेशन है, जनरल सेकेंडरी इक्वेशन है, सेकेंडरी इक्वेशन यही होता है, इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना, जो है इसमें से कुछ मिसिंग हो सकता है, लेकिन अगर सब होगा तो यही होगा। जैसे क्वालिटी इक्वेशन हम लोग लेते हैं ax प्लस bx नहीं भी हो सकता है, लेकिन कंप्लीट शेप में है, तो ये है सेकंड ऑर्डर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेशन। अभी इसमें से हमको फर्स्ट डिग्री टर्म नहीं चाहिए, मतलब x वाला और ये वाला टर्म गायब करना है, मन किया कैसे गायब करते हैं, सेम इसी तरीके से करेंगे, तो जो x के साथ कोफिशिएंट है उसको जीरो कर देंगे, जो y के साथ कोफिशिएंट है उसको जीरो करेंगे, करने से आ जाएगा। करने से हम लोग देखता है कि ये करना और ये करना एक ही बात है, तो हम लोग यही मेन फॉर्मूला है, बाकी जो भी फॉर्मूला है इसी का एक्सटेंशन है, इसको सीख लिया तो हो जाता है। क्या बोला है, ये जो एक्सप्रेशन है तुम्हारा s वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वल टू जीरो में छोड़ के, ये जो s वाला लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन, इसको एक बार, ये थोड़ा टेढ़ा डी है, देखना इस टाइप का डी है, इसको हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं, डिफरेंशिएशन नहीं, पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल में क्या करते हैं, जैसे विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो y को हम लोग कांस्टेंट मान लेंगे, एक बार ऐसे करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करके जीरो करेंगे, एक बार विद रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करके जीरो करेंगे, दो इक्वेशन बनेगा, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से अपने को पॉइंट मिल जाएगा, जिस पॉइंट में जाने से कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, वेरी गुड, देख के लग रहा है, फील आता है कि ऊपर से जा रहा है, एक एग्जांपल होने से सही होता है।
चलो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट एन एग्जाम्पल। कैसे आया तो मैं दिखा दिया। एक्चुअली एच के को जीरो करके देखते हैं कि वो करना और डिफरेंशिएशन करना एक ही बात है। मान लो मेरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। अभी अपने को क्या चाहिए, इसमें से एक्स वाई टर्म हटाना है। तो थ्योरम क्या बोला है कि डेल एस डेल एक्स करो, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करो। अभी तो मैथ्स में तो किया नहीं होगा, फिजिक्स सर का हेल्प ले लेते हैं না। আমার কি অসুবিধা দেখছো তুমি, আমার থোড়ি অসুবিধা, অনেকে বলে ওদিকে যারা বসে ডেল এস ডেল এক্স উইথ রেসপেক্ট টু এক্স যদি আমি ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে কি হবে, ফিজিক্সের স্যারের হেল্প নিই, অঙ্কে তো আমরা শিখিনি এখনো। এক্স স্কয়ারের ডিফারেন্সিয়েশন কি 2x, ওয়াই স্কয়ার কনস্ট্যান্ট ট্রিট হবে এখানে। হ্যাঁ এক্স এর রেসপেক্ট হচ্ছে তো ওয়াই কনস্ট্যান্ট, এক্স এর डिफरेंशिएशन 1, 2x এর 2, बाकी तो 0। तो क्या बोला है फॉर्मूला थ्योरम में, इसको 0 कर दो और फिर डेल एस डेल वाई करके उसको भी 0 कर दो। अब y के रेस्पेक्ट में क्या बनेगा, 2y प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल टू। इसको इक्वेशन 1 लिखो, इसको इक्वेशन 2 लिखो, इन दोनों को सॉल्व करो। सॉल्व करने से है सेम टाइप विद रेस्पेक्ट टू इसी को एक बार x के रेस्पेक्ट में, एक बार y के रेस्पेक्ट में, दो इक्वेशन बन गया। दोनों को सॉल्व किया, मान लो कि x इक्वल टू 5 आया, y इक्वल टू 1 आया, मानो लेफ्ट। फिर बोलना मत कैसे आ गया। इसका मतलब हुआ कि हम 5,1 में अगर लेके जाएंगे सेंटर को, तो उसमें जब ये इक्वेशन नया इक्वेशन बनेगा उसमें x वाई टर्म नहीं रहेगा। समझ में आया? कहाँ से आया, कुछ नहीं, x के जगह में x प्लस h, y के जगह में y माइनस के, जो हमने किया। उसके बाद x वाला कोफिशिएंट देखने ही आता है, 2h प्लस k प्लस 2 0, 2k प्लस h प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देख लिया, अरे डिफरेंशिएशन करके तो वही आता है, इसलिए बोल दिया कि डिफरेंशिएशन करने से भी आ जाएगा। तो मेन फॉर्मूला इसका ही है। करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग, तब देख लेना, ठीक है। अभी देखो सेम, अभी ये सब जितना भी है 3 के बाद 4 5, ये सब कुछ भी फॉर्मूला सीखने का जरूरत नहीं, दे विल गिव लॉट्स ऑफ फॉर्मूला। अपने को यही वाला एक ब्रह्मास्त्र मिल गया शॉर्टकट, उसके बाद क्या और फॉर्मूला सीखना आगे। क्या बोला है कि फर्स्ट डिग्री टर्म, वही बात है, फर्स्ट डिग्री टर्म मतलब उसी को हटाना है तो कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करने बोला है। क्या जरूरत है, मतलब डिफरेंशिएशन किया, उसको करने के बाद शुरू करके सॉल्व करके डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है ना, जरूरी नहीं है। तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके कौन याद रखेगा, क्या जरूरत है। सेम ये वाला भी सेम देखो, मतलब अभी इक्वेशन में थोड़ा थोड़ा चेंज करें, इसमें एक्स वाई टर्म नहीं है तो थोड़ा इसमें से कुछ एच वाला हट जाएगा, तो एच 0 हट गया, ठीक है ना। ऐसे करके अगर चेंज करेगा तो इस टाइप का, जैसे एच हट गया तो क्या होगा, ये बी जी बाई ए बी, बी बी कट गया तो जी बाई ए। সবগুলো ওইটাই করে তাহলে हम स्पेसिफिक, जैसे ये मतलब इसमें एक्स वाई था बोल के ऐसे होगा, अभी इसमें एक्स वाई नहीं है तो ऐसे होगा। देखो इसमें एच 0 डाल दो, ये वाला है, नहीं है मतलब क्या एच 0 है, जरूरी नहीं है, मतलब ये सब डायरेक्ट क्या डिफरेंशिएशन करके आ जाएगा। सो दीज आर नो नीड। सेम इसमें क्या है, इसमें स्टार्टिंग का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो इसमें से भी अगर एक्स वाई हटाना है तो ए बी बी को भी 0 कर दे, को 0। द पॉइंट टू व्हिच ओरिजिन हैज टू बी शिफ्टेड टू एलिमिनेट एक्स वाई टर्म्स इन द इक्वेशन। एक ही बात, गड़बड़ ऐसे एक ही बात। द इक्वेशन दिस हैज बीन ट्रांसफॉर्म टू दिस व्हेन द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू एल एम। हाँ ये तो आपने को पता चल गया। एक्चुअली ये सब क्या होता है, x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट होता है, इसका डिफरेंशिएशन एक्चुअली नहीं चाहिए इसको, यही बात है। मतलब जो इसलिए तो हम लोग इसको 0 कर देते हैं, समझ में आ रहा है ना। जैसे हम लोग इसको नहीं चाहिए तो इसको हम लोग 0 कर देते हैं। तो बोला अगर मान लो कि 0 नहीं करना है, तुमने ट्रांसफॉर्म किया, तो ये क्या होगा, ये एक्चुअली डिफरेंशिएशन करके आता है। एक्चुअली चेंज होने के बाद ये आता है, जब हम h के डालेंगे तो x का कोफिशिएंट ये बनता है, y का कोफिशिएंट ये बनता है, इसलिए वो लोग नीट करेंगे। इसको 0 कर दोगे तो गायब हो जाएगा, गायब करना है। तो आई डोंट थिंक इसमें और कुछ ऐसा तुमको सीखना होगा, ठीक है। जैसे ये तो तुमको पहले ही पता होगा, ये आप इस पेयर ऑफ स्टेटमेंट में जब करोगे, ये है एक आइडियल, क्या बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर जनरल डिग्री इक्वेशन। ये अगर इस टाइप का कुछ शेप लेगा, कब लेगा,
जब ये जीरो होगा, डेल्टा इक्वल टू जीरो। डेल्टा जीरो किसके लिए था? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। जब तुम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन करोगे तो तुमको पता चलेगा इसका कोई जरूरत ही नहीं होता पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में। तो सिर्फ इतना इतना अगर चाहिए मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चाहिए तो डेल्टा जीरो होना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? वहां से सीख जाएंगे हम लोग, कोई जरूरत ही नहीं है। डेल्टा जीरो हो जाएगा तो फिर ये वाला पोर्शन अपने को चाहिए नहीं होता है, क्योंकि यही ये उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का। जो भी है सब डिफरेंशिएशन करके आया है, तो बाकी छोड़ दो, तुम्हारा ब्रह्मास्त्र ही है, उसको छोड़। रोटेशन तो हमने देखा है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को हमने थीटा डिग्री घुमा दिया विदाउट पोजीशन चेंजिंग द ओरिजिन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तब क्या बनता है इक्वेशन। ठीक है, ये एक अच्छा चीज है और इसको थोड़ा ध्यान से देखो। इसका कॉम्बो पोर्शन भी आ जाएगा 12 में। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री और मैट्रिक्स मिलके, तीनों मिलके कॉम्बो बनता है, इसका कॉम्बो टॉपिक बनता है, अच्छा शॉर्टकट भी बनता है। ठीक है, ये तीनों मिलके अभी याद रखो। अभी तो मैट्रिक्स वेट्रिक्स नहीं है अपने पास, तभी अपना जो भी है इसको ऐसे देख के याद रखो। जैसे यहाँ पर एक टेबल बना के दिया है, फिलहाल तो तुमको मैट्रिक्स नहीं आता है, तो इसलिए वो लोग मैट्रिक्स में नहीं किया, इस टाइप के एक टेबल बनाया। ये स्मॉल एक्स स्मॉल वाई क्या है, ये जो पुराना एक्स है पुराना वाई है, ये नया एक्स है नया वाई है। ठीक है, एक टेबल बना के दिया है कॉस थीटा, इसको याद रखना माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ये तो 12 में जब मैट्रिक्स करोगे एकदम जबान पे आ जाएगा तुम्हारा एकदम मुखे मुखे थक देगा। ठीक है, हाँ कॉस माइनस साइन, साइन कॉस माइनस साइन। अब इसमें देखो, तुमको अगर नया एक्स चाहिए, पहले तुम 11 में कैसे मैट्रिक्स वाला मैं अभी नहीं दिखा रहा हूँ, साइड में लिख के रखूंगा क्योंकि अभी तक किया नहीं तुमने। अगर कैपिटल एक्स चाहिए तो तुम देखना कैपिटल एक्स क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। समझ में आ रहा है? और कैपिटल वाई चाहिए तो क्या होगा, दिस इंटू दिस माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। ठीक है, मान लो पुराना कोऑर्डिनेट से तुमको नया कोऑर्डिनेट जाना है, और अगर उल्टा है, मान लो नया कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तुमको पुराना कोऑर्डिनेट में वापस आना है। अभी ये एक्स चाहिए तो ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये, ऐसे देखना है। तो ठीक है, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, ये लिखा है यहाँ पर फॉर्मूला भी। और पुराना वाई चाहिए होगा तो एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। समझ में आ रहा? जब पुराना चाहिए तुम ऐसे देखो, जब नया चाहिए व्हेन यू नीड द न्यू वन, तुमको नया वाला क्या होगा वो जानना है, तब तुम ऐसे देखो। ठीक है, इसी को थोड़ा मैट्रिक्स में हम लोग हल्का करके लिखते हैं, और मैट्रिक्स वाला जानना जरूरी है। ये मान लो अपना नया कोऑर्डिनेट है, सॉरी पुराना कोऑर्डिनेट में वापस आना है, सॉरी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ये मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होता है, दिस इनटू दिस करके, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, इस टाइप का है। तुम आगे चल के सीखोगे कैसे इनटू होता है। हाँ सेम नहीं, कॉस माइनस साइन साइन कॉस है ना, पहला वाला कॉस है। एग्जैक्टली सेम। तो आगे चल के तुमको ये जानना जरूरी होगा, क्योंकि जब मैट्रिक्स सीख जाओगे तो इट्स अ वेरी इजी वन, इसलिए मैं दिखा दिया। अगर उल्टा चाहिए होगा तो इसके इनवर्स लिखते हैं, इसको अगर इधर आता है जैसे नया वाला चाहिए तो पुराना वाला के साथ हम इंटू कर देते हैं, इसके इनवर्स उल्टा। मैट्रिक्स इनवर्स क्या होता है उसमें हम लोग जब 12 में आगे मैट्रिक्स देखेंगे। लेकिन इस मैट्रिक्स का एक स्पेशल नाम है, क्यों मैं नाम क्यों बोलते रहा हूँ, क्योंकि बाद में जब करूँगा यू कैन, क्योंकि तीनों का मिक्स करके मैं एक कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा, रोटेशन ऑफ एक्सिस, मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर और ट्रिगो, चारों मिक्स करके एक क्वेश्चन बनता है, कुछ अच्छा सवाल बनता है। तब तुम्हें याद आना चाहिए, अच्छा सर ने बोला था, बस इतना याद होने से होगा। इस टाइप का मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर आवर जीवन। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, उसका नाम है स्पेशल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है मैट्रिक्स में, जेई के लिए। तो एक्चुअली ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कुछ नहीं, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू 2D स्ट्रेट लाइन का रोटेशन। और कुछ भी रोटेशन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में रोटेट करना इजी हो जाता है, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है। और रोटेट करेंगे क्योंकि एंगल है, तो इसलिए ट्रिगो भी आता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये मिक्स हो जाता है, इसलिए सारे कॉन्सेप्ट ऐड हो जाता है। इसमें भी बहुत कुछ बना के दिया है उन लोग ने, तो आई डोंट थिंक इतना याद करने का जरूरत है, डायरेक्ट रट्टा हो जाएगा, तो इतना कौन याद करेगा।
ये सब तो ये दोनों सेट तो मैंने दिखा दिया कैसे लिखना है, पुराना x से नया x, पुराना y से नया y। अब कुछ स्पेसिफिक है, जैसे मान लो रोटेट करके हमको एक्स वाई टर्म हटाना है, रोटेट करके एक्स वाई टर्म हटाना है, तो क्या बोला है कि थीटा ऐसा होना पड़ेगा। अगर याद रख पाया तो अच्छी बात है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर a नॉट इक्वल टू, इसका दो पार्ट है, ठीक है ना, कोमा देखें, एक्चुअली ये एक लाइन में लिखा है बोल के स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज होता है। ये है हाफ टेन इनवर्स 2h बाई a माइनस बी, जब a इज नॉट इक्वल टू b होगा, और अगर a इक्वल टू b होगा देन इट इज 2n प्लस 1 5/4, जब a इक्वल टू b होगा। समझ में, इसका दो पार्ट है थीटा का। अगर a नॉट इक्वल टू b होगा तो ये a इक्वल टू b होने से ये 2n प्लस 1 5/4। इससे क्या हो जाता है, इससे रोटेट करके एक्स वाई टर्म हट जाता है आफ्टर रोटेशन। मतलब क्या, तुम साइन कॉस थीटा सब डालो, डालने के बाद एक्स वाई के साथ जो कोफिशिएंट बनेगा उसको जीरो कर दो। एक्स वाई के साथ जो कोफिशिएंट बनेगा, जैसे पुराना एक्स के जगह में नया एक्स के जगह में तुम ये सब वैल्यू डालोगे, ठीक है ना, डालने के बाद इक्वेशन चेंज हो जाएगा, बदल के जो एक्स वाई के साथ में जो टर्म बनेगा उसको जीरो कर देना, ये आ जाएगा थीटा। इतना जरूरी नहीं है, जस्ट रोटेशन याद रखो, दीज आर वेरी स्पेसिफिक, मतलब केवल उसी जगह में आएगा। तो ये सेम, अगर तुमको इसमें से एक्स वाई, थीटा इज द एंगल टू एलिमिनेट एक्स वाई टर्म्स इन दिस वन। अच्छा, अगर तुमको थीटा मिल गया तो उसका 90 का कोई भी मल्टीपल में भी, मान लो 40 डिग्री में तुमको मिल गया कि एक्स वाई टर्म नहीं रहेगा, तो 40 प्लस 90 130 में भी नहीं रहेगा, 130 प्लस 90 220, जितना भी 90 ऐड करते रहो उसके साथ, उसमें भी वो टर्म नहीं रहेगा। अगर जितना डिग्री घुमाने के बाद वो टर्म मिस हुआ, उसके साथ 90 ऐड करने से भी वो टर्म मिसिंग रहेगा। ये बोला है सेकंड वाला थ्योरम। इसको फिर भी याद कर सकते हैं, लेकिन पहला वाला तो डायरेक्ट याद करना टफ हो जाता है। अच्छा, ये वाला इक्वेशन को मान लो, देखो इसको इतना छोटा है, क्यों इसको सीखना है, इतना छोटा है, इसमें एक्स वाई डालने से एक ही लाइन का क्वेश्चन है, तो क्या फालतू। ठीक है, छोटी इक्वेशन है एक्स प्लस बी वाई, इतना छोटा लीनियर इक्वेशन है, डाल के जीरो कर दो। क्या एक्स इक्वल टू कांस्टेंट मतलब क्या है, वाई वाला कोफिशिएंट जो आएगा उसको जीरो कर दो, वाई इक्वल टू कांस्टेंट मतलब एक्स का कोफिशिएंट जीरो कर दो, जरूरी नहीं है फालतू। अच्छा, जनरल ट्रांसफॉर्मेशन के जैसे इसमें दोनों है, ट्रांसलेशन भी है रोटेशन भी है, तब हम क्या करते हैं, तब इस टाइप का, तब x माइनस एच इक्वल टू ये, एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर x माइनस एच वाई माइनस क्या हो जाएगा। नॉर्मली पहले तो रोटेट कर लो, ठीक है ना, ये तुम्हारा x माइनस एच क्या बनेगा, देखो x इंटू कॉस थीटा प्लस वाई इंटू माइनस साइन थीटा प्लस एच। क्या होता है, पहले रोटेट कर लो, बाद में एच जोड़ दो। मान लो तुम नया से, ये क्या है, ओल्ड से न्यू में आ रहा है ना, हाँ, x के जगह में तुम डालोगे ना कैपिटल X, तब तो नया वाला हो जाएगा। तो पहले रोटेट कर लो थीटा लिख के, फिर उसके साथ ऐड कर दो, ठीक है ना। x इक्वल टू कैपिटल X प्लस एच लिखते हैं ना हम लोग, क्या था ट्रांसलेशन में, कैपिटल ये था ये वाला, x इक्वल टू स्मॉल x इक्वल टू क्या था, कैपिटल X प्लस एच। तो पहले रोटेट करो देन ऐड करो, ठीक है, वो करने से हो जाएगा। या फिर तुम इसको सीख के रखो, ये कैसे होगा, x माइनस एच इक्वल टू दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, हम लोग करेंगे, उसके बाद एच उधर जाके प्लस। ये था एंटी क्लॉकवाइज के लिए। ये जो हमने टेबल फॉर्मूला सीखा, ये किसके लिए है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए, जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोला जो हमने सीखा। क्लॉकवाइज हो जाएगा तो थीटा को माइनस थीटा लिखना पड़ेगा, थीटा के सामने एक माइनस साइन आ जाएगा, देन द रोटेशन विल बी क्लॉकवाइज रोटेशन, अगर उल्टा घूम रहा है। ऑन ट्रांसलेशन और रोटेशन ऑफ ए पॉइंट, अगर तुम ट्रांसलेट करो या फिर रोटेट कर रहे हो, द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट्स, एरिया, पेरीमीटर, एंगल, दीज आर नेवर चेंज्ड बिकॉज़ दीज आर बेसिक प्रॉपर्टीज। Only coordinates and equation will change. If the axes are rotated angle theta, the following sum invariants, original and transformed equation in second degree general equation. ये सब जो भी है, सब कुछ ना कुछ कैरेक्टर डिफाइन करता है, इसलिए चेंज नहीं होता। जैसे ए स्क्वायर माइनस ए बी क्या डिफाइन करते हैं, इसेंट्रिसिटी। ध्यान रखना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होने से पैराबोला, ए स्क्वायर लेस देन, तो ये इसेंट्रिसिटी कभी चेंज नहीं होगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी कभी चेंज नहीं होगा। ये सब कुछ ना कुछ डिफाइन करता है, सब तो अभी तक पढ़े नहीं हम लोग, जैसे ये आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में। सो दीज आर ऑल सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट सेकंड ऑर्डर इक्वेशन, जो आगे चल के आते रहेगा, तो इसलिए वो कभी चेंज नहीं होता। जैसे ये डेल्टा है, ये कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा चेंज होगा तो कोनिक से स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, पैराबोला से इलिप्स बन जाएगा, शेप भी चेंज हो जाएगा। तो दीज आर सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच विल नेवर चेंज।
ये तो वही लाइन बोला है कि शिफ्ट करके फिर रोटेट किया तो क्या होगा, ये सब नहीं चाहिए, डायरेक्ट इसको सिखा दिया, याद कर लो कि ऐसा होने से ऐसा 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 कौन चाहिए, ठीक है। আগে বাড়ে, এগুলো ডাইরেক্ট ফর্মুলা গুলো বানিয়ে দিয়েছে। और दीज आर प्रॉपर्टीज, ये तुमको आगे चल के पता चल जाएगा, मतलब बेसिक प्रॉपर्टीज, ये कुछ ना कुछ ग्राफ का कुछ ना कुछ डिफाइन करते हैं। ये एसेंट्रिसिटी डिफाइन करता है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करता है, एसेंट्रिसिटी इससे निकाल सकता है, ये डेल्टा रिप्रेजेंट करता है, ऐसे करके इसका मुझे याद नहीं, पेयर ऑफ स्टेटमेंट का कुछ रिप्रेजेंट करता था, ठीक है ना। इसलिए दे डोंट चेंज, तो कौन याद रखेगा ये सब, ये सब जब तुम आगे करोगे देख जाएगा, ये तो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसलिए ये सब नहीं बदलता। हो गया, I am done with my theory, done and dusted, theory शेष। खुशी है ना, থিওরি শেষ হলো, খুশি না, स्ट्रेट लाइन तो प्रचुर थी, स्ट्रेट लाइन को थोड़ा पार्ट पार्ट में करेंगे हम, देखते हैं ना। एक अच्छा चीज है कि बोर्ड में हो गया तो बहुत सारे थ्योरी तुम्हारा बोर्ड के साथ कवर अप हो जाएगा, ठीक है ना। बोर्ड वाला तो कर लिया, सिर्फ जेई वाला कुछ बचेगा। প্রথমটা আমি দেখাচ্ছি, এরপরে একটু একটু স্ট্রাইক করো। cos alpha cos beta are the new coordinates of point P when the axes are translated to 1 1 then the original coordinate, नया कोऑर्डिनेट बोला है ये। दिस इज योर कैपिटल X, मतलब कैपिटल X इक्वल टू cos alpha एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू cos beta। और पुराना कोऑर्डिनेट क्या है, स्मॉल x इक्वल टू 1 and the axis is translated to, अच्छा ना पुराना कैपिटल नहीं है, पुराना अपने को निकालना है, तो पुराना वाला क्या होता है, कैपिटल X प्लस H, ठीक है ना, कैपिटल Y प्लस के, ही था फॉर्मूला। और कैपिटल X क्या है, cos अल्फा, और H क्या है, कहां पर ट्रांसलेट किया, 1, ये cos बीटा प्लस 1। देखना नया पुराना में, ये नया है, अपने को पुराना वाला चाहिए, ओरिजिनल वाला जो पहले था। तो 1 प्लस कॉस अल्फा कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये होगा 2 कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2, पहला ऑप्शन है, ঠিক আছে। সেকেন্ড একটু রিপোর্টটাতে যাও, সেম রিপোর্টটা দেখো কি বললো সেকেন্ডটাতে, দি পয়েন্ট হুইচ ইট শুড বি সেট টু মেক দ্য ফার্স্ট ডিগ্রি টার্ম মিসিং, ফার্স্ট ডিগ্রি টার্ম মিসিং, দেয়ার শুড নট বি নো xy টার্মস। তাই নো xy টার্মস জন্য আমরা কি শিখলাম, del s del x করে इक्वल टू 0 করে देंगे, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करो, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू x, तो y कांस्टेंट है, सो इट इज 3y minus 2 इक्वल टू 0, यहाँ से तुमको y मिल जाएगा 2/3, और del s del y इक्वल टू 0, पहले y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो फिर बनेगा 3x plus 1 is equal to 0, which will give x equal to -1/3। तो मेरा क्या है, -1/3 2/3, so this is your answer। सिमिलरली हम लोग द पॉइंट टू व्हिच 0 0 मस्ट बी शिफ्टेड, मतलब ओरिजिन को कहाँ शिफ्ट करना है, एक ही बात है, सो दैट एक्स वाई टर्म नहीं होना चाहिए दोनों को। तो सेम क्वेश्चन लाइक टू डिफरेंशिएट इट, मेक इट 0, देन यू विल फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर योर ओरिजिन शुड बी मूव्ड। কত আসলো ডিফারেন্সিয়েট করাতে বলো তো, del s del x কত আসলো, 8x minus 8 equal to 0, which gives me x equal to 1, del s del y 18y plus 26, which gives me y equal to -2. So the point where it should be shifted is 1, -2, option D. Number 4, 4 की बोल लो, the distance between two given points is 2 unit, and the points are transferred by shifting the origin to 2 2, माने origin के shift करे दिया, that is the known as transfer। point को shift नहीं किया means origin shift हुआ 2 2 में, तो obviously points का coordinate transfer हो जाएगा। then the distance between the points in the new position, जो नया जो position बनेगा उसको उसका नया नाम बन जाएगा, क्योंकि अभी रेफरेंस चेंज हो गया, तो नया नाम जो बन जाएगा उसके बाद उन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या बनेगा बोला, কত হবে আমি পড়েছিলাম, আমরা পড়েছিলাম মাঝখানে
থিওরি বলতে বলতে একটা সময় বলে দিয়েছিলাম মাঝখানে জিনিসগুলো। the characteristics or property will never change. Distance তো একটা প্রপার্টি দুটো না, হ্যাঁ, distance, latus rectum, radius, low, eccentricity, these are characteristics, these will never change, so it will remain as two, যেমন আছে এমনই থাকে, শুধু coordinates and equation change, but basic characteristics will always remain same, ঠিক আছে না? Fifth number, the axes are translated to the circumcenter of the triangle formed by this, then the centroid. देखो सर्कमसेंटर क्या है निकालो, फिर वहां पर उसको ट्रांसफॉर्म करना है, नया एक्स नया हुआ है, ठीक है ना? ये पुराना एक्स तुम्हारा जो पुराना सेंट्रोइड निकाल लेना, पुराना सेंट्रोइड तेजी हो जाएगा, उसको फिर ट्रांसफॉर्म कर देना। पुराना सेंट्रोइड जो होगा मान लो एक्स वाई हो गया, और तुम इसका जो सर्कमसेंटर निकलेगा ये होगा एच के, जहां तुमको जाना है। समझ में आ रहा है ना? तुमको कहाँ ट्रांसलेट करना है? सर्कमसेंटर में। इसका सर्कमसेंटर निकालो, वहां जाना है तुमको, ओरिजिन को वहां शिफ्ट करना है। शिफ्ट समझ में आ रहा है ना? इट इज द एक्सिस आर ट्रांसलेटेड टू दिस, तो एच के हो गया ये। होने के बाद इस सेंट्रोइड का जो पुराना कोऑर्डिनेट था वो अभी क्या बनेगा? तो ये जो पुराना एक्स वाई था, तुमको कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई निकालना है। समझ में आ गया क्या क्या है? पुराना सेंट्रोइड जो है वो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, ये गिवन है, तुमको पुराना कोऑर्डिनेट से मिल जाएगा। एच के तुमको निकालना है यहाँ से सर्कमसेंटर, वो निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये तो निकल ही जाएगा, तब ये निकालना है अपना, फाइनल टारगेट है अपना ये। सोचो तो, पहले सर्कमसेंटर हम लोग ने किया है बहुत सारे। सर्कमसेंटर कैसे करते हैं? थोड़ा डांट देता है, मौका मिला है। सर्कमसेंटर कैसे मिलता है? गुड, हमने कोनो फॉर दैट इज कमेंडेबल, पहला लाइन सही बोला। दूसरा तो कैसे कर हो गया, शुरू कर सकते हैं। ये भी नहीं हुआ तो और क्या देख सकता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल देख सकते हैं, ये भी सही है। और राइट एंगल ट्रायंगल, तो देखो, तो सबसे पहले कौन सा करोगे? सबसे पहले तो ये नहीं है, अपने को मालूम है, तो इसमें जाना ही नहीं है। सबसे पहले तो ये इजी है, उसके बाद ये ट्राई करो, उसके बाद ये ट्राई करो, क्योंकि उसमें ऑर्थोसेंटर भी मुश्किल आएगा, ठीक है ना? तो सबसे पहले देखो और इक्विलैटरल है कि नहीं, तो सबसे इजी हो जाएगा। उसके बाद राइट एंगल है कि नहीं देखो, अगर इन दोनों में हो गया तो बच गया, नहीं हुआ तो थोड़ा काम बाकी है, ठीक है? ट्राई करो, ठीक है? कौन सा वाला, कौन सा आपका? ये तो हो गया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये दिख गया तुमको? সার্কামসেন্টার বের করেছে। আচ্ছা বলো আমাকে রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলটা কেমন? রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল এটা কেমন হলো? আচ্ছা ধরো আমি এবিসি লিখলাম, এতে কি দেবো? এখানে একটা সি, এ এখানে, বলো 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 বলো। সি এর কোঅর্ডিনেট ওরাকে দিয়েছে, তুমি কি ধরেছো বলো? ওরা তো কিছু দেয়নি। তোমার সি কোনটা? -1,3। तुमको यहाँ राइट एंगल मिल गया, और ये कोणटा 9,3 धरलाम, और इधर -1,7 धरलाम, तो तुमको ये दिख गया ना? तो तुम्हारा बोला है एक्सिस कहाँ ट्रांसलेट हुआ है? सर्कमसेंटर में ट्रांसलेट हुआ है। सो फॉर दैट यू कैलकुलेट द सर्कमसेंटर। गुड, ये सर्कमसेंटर हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल का। क्या हो गया? 9 - 1 8/2 4, और 3 + 7 10/2 5, तो 4,5 होगा। तो अपना जो ओरिजिन है कहाँ शिफ्ट हुआ? वो ओरिजिन शिफ्ट हुआ 4,5 में। दैट मीन्स दिस इज माई एच एंड के, विच इज इक्वल टू एच के। जो हम लोग फॉर्मूला सीखते हैं उसमें एच के ही हो गया। अभी पुराना सेंट्रोइड क्या है? दिस इज योर ओल्ड सेंट्रोइड, सेंट्रोइड इन ओल्ड कोऑर्डिनेट, जी इन ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओल्ड कोऑर्डिनेट मतलब जी कोऑर्डिनेट दैट दे हैव गिवन, नया कोऑर्डिनेट अभी तक निकाला नहीं हमने। तो पुराना कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा? तीनों प्लस करके 9 - 1 -1/3, फिर 3 + 3 + 7/3, तो कितना आ रहा है? 7/3, 13/3। ये हो गया अपना पुराना कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अपने को क्या निकालना है? देन द सेंट्रोइड इन द न्यू सिस्टम में सेंट्रोइड क्या हो जाएगा? तो जी इन न्यू सिस्टम क्या हो जाता है? अपने को कैपिटल एक्स निकालना है। कैपिटल एक्स क्या हो गया? ये मेरा स्मॉल एक्स स्मॉल वाई हो गया, ठीक है? तो कैपिटल एक्स क्या होता है? स्मॉल एक्स माइनस एच, और कैपिटल वाई होता है स्मॉल वाई माइनस के। तो 7/3 माइनस एच कितना है? 4, और ये हुआ 13/3 -5, 3 3 4 12 -5/3,
-2/3, सो -5/3 कॉमा -2/3, सो ये हो गया अपना आंसर। समझ में आया? नया कोऑर्डिनेट में वो क्या बन जाएगा? এখন বুঝেছো তো থিমটা? শিওর? এখন বুঝেছো? क्लियर? आगे बढ़े। अभी देखो नंबर 6 में क्या बोला है? The transformed equation of this one when the axis is translated to this, each this, तो दोनों में क्या अंतर है? ये इक्वेशन देखने में और ये इक्वेशन देखने में क्या मिसिंग है? एक्स स्क्वायर माने एक्स वाई टर्म का मिसिंग, दैट मींस del x del s del x और जीरो, वो तो अच्छा दे हैव डायरेक्टली गिवन यू द पॉइंट आल्सो, तुमको डायरेक्टली दे भी दिया कहां शिफ्ट किया है, ठीक है ना? देन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एबीसी, वो तो तुम कर लो। अब क्या कैसे करोगे इसको? जो पुराना x से अपने को नया x पे जाना है, ठीक है ना? 6, तो क्या होगा? स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस h कितना है अपना 1, और स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस 2k, दैट इज -2। यहाँ पर हम लोग इसमें x y की जगह में ये रिप्लेस कर देंगे। बोला ये इक्वेशन ऐसे बन गया देखने में। उसके बाद एबीसी का कौन बड़ा कौन छोटा असेंडिंग डिसेंडिंग निकालने बोला। हम पहले इसको बनाते हैं, इसको अगर चेंज करते हैं इसमें जाने से क्या चेंज होता है देखता हूँ, तो ये डाल के देखता हूँ इसको कैसे चेंज करेंगे हम लोग। समझ में आ रहा ना? एच के में हमने यहाँ शिफ्ट किया इसको, तो क्या हो जाएगा? स्मॉल एक्स माइनस एच इक्वल टू कैपिटल एक्स, तो उस हिसाब से तुम स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस 1, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है यू विल पुट इट हियर। इसमें डालेंगे हम लोग 4x स्क्वायर, एक्स के जगह में क्या डालेंगे हम लोग? स्मॉल एक्स के जगह में कैपिटल एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू कैपिटल वाई माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू कैपिटल एक्स प्लस 1 प्लस 36 इंटू कैपिटल वाई माइनस 2 प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको करो, करने के बाद एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट बनेगा वो ए होगा, वाई स्क्वायर के साथ जो बनेगा वो बी होगा, और जो सी बनेगा उसमें से अब इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। क्वेश्चन थोड़ा करेक्ट कर लो, ये माइनस सी है शायद, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस सी है, तो डायरेक्ट क्या है स्ट्रक्चर? इसको जब करते हैं तो हम लोग आते हैं 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर 28 इक्वल टू 0। तो अपना a हो गया 4, b हो गया 9 एंड c हो गया 28। अपने को क्या था? डिसेंडिंग ऑर्डर बोला था, दैट इज CBA ऑप्शन ए ना। तो चेक कर रहा हूँ ऑप्शन के ने बोला से ना, ठीक है सर, ठीक है। हमने क्वेश्चन तो चेंज कर लिया तो ठीक ही होगा। आगे बढ़े, ठीक है। क्वेश्चन ही चेंज कर लिया, जहाँ गलती था हमने क्वेश्चन को 7 की बोल रहा। By translation of axis, the equation this changed as this, then c is equal to कितना? हम लोग ट्रांसलेट करने के बाद c बनी। अच्छा देखो क्या मिसिंग है इसमें? x और y, that means you know at which point they have translated। कैसे निकालेंगे हम लोग? फर्स्ट डिग्री टर्म को मिसिंग करना है, तो लोग कहाँ से del x करके तुमको पता चल जाएगा कहाँ लेके जा रहा है इसको, फिर वहाँ लेके जाना इसको, x और y के जगह वो रिप्लेस कर देना, रिप्लेस करने से इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे हम लोग अभी ABC वहाँ से C निकल जाएगा, ठीक है। करो। अच्छा del s del y कितना है? del s del x with respect to x किया तो इसका डिफरेंशिएशन y minus 1 is equal to 0 which gives you y equal to 1, और फिर with respect to y किया तो x plus 2 is equal to 0 which gives x is equal to -2। तो अपने को कहाँ शिफ्ट करना है? -2 और 1 में। तो अपना जो नया स्मॉल x हो जाएगा कैपिटल X -2 और स्मॉल y हो जाएगा कैपिटल Y प्लस 1। प्लस होता है h के, लेकिन यहाँ -2 बोल के, तो अभी इसमें शिफ्ट कर दो। किस में शिफ्ट करना है? अपने को x की जगह में डालना है x -2
और y के जगह में डालना है y प्लस 1 माइनस x के जगह में डालना है x माइनस 2 और y के जगह में डालना है y प्लस 1 फिर माइनस 6 इक्वल टू 0। इसमें से क्या आ जाएगा अपना एक्स वाई प्लस एक्स है মনে থাকে না ওটা থাকে মনটা प्लस 2y प्लस 2 धीरे धीरे ठीक हो जाएगा फर्स्ट टाइम है बस हो गया। तो एक्स वाई इक्वल टू क्या बन गया अपना 4। तो सी कितना आ गया 4। হয়ে গেল নেক্সট কি বললো 8 নাম্বারটা shift the origin to a suitable position so that the equation will not contain y and constant term। अभी देखो अभी ये तो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला में नहीं बचा क्योंकि इसमें y को मिसिंग करना है और कांस्टेंट टर्म को। नॉर्मली हम लोग xy को मिसिंग करते हैं तो फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं, लेकिन यहाँ तो वो फिक्स नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ वो मिसिंग हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या देखना होगा, बेसिकली अगर y वाला चाहिए ना तो हम लोग x को डिफरेंशिएट कर देने से हो जाएगा, क्योंकि ये y का कोफिशिएंट बनता है। y के जगह में हम y प्लस के यूज करेंगे। मान लो कि हमको जैसे y नहीं चाहिए ना, तो y वाला कोफिशिएंट एक्चुअली कहाँ से आता है, इससे डेल x करने से जो कोफिशिएंट बनता है वो एक्चुअली y वाला ही बनता है। डेल x नहीं उसमें तो x वाला बनेगा, y वाला आएगा इधर से। नहीं बोल नहीं सकता, नहीं दोनों का मिक्स रहता है। यू कैन नॉट स्पेसिफाई कि इसमें कौन सा आएगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, तो हमको मान लिया कि हमने इसको h, k में शिफ्ट किया। वी हैव शिफ्टेड टू h, k 0 को h, k। अब शिफ्ट कर दो स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस h, स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k। शिफ्ट करने के बाद जो y का कोफिशिएंट होगा उसको 0 कर देंगे और जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको 0 कर देंगे। वहां से अपने को h के निकल जाएगा, ठीक है। यही था बेसिक आइडिया, इसी को शॉर्टकट बना दिया और डेल x वो वाला है, समझ में है ना। बेसिक आइडिया यही था। अभी इसको अगर कुछ रूप देना है, नया रूप देना है, तो इसमें इसको डालो कैपिटल Y स्क्वायर प्लस 4 इंटू कैपिटल Y प्लस k प्लस 8 इंटू कैपिटल X प्लस h माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको नया रूप देना है तो क्या बन जाता है, ये y स्क्वायर प्लस 2yk प्लस k स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4k प्लस 8x प्लस 8h माइनस 2 इक्वल टू 0। अभी तुमको क्या क्या देखना है, देखो क्या चाहिए अपने को। सबसे पहले y टर्म को मिसिंग कराना है, ठीक है ना। तो y टर्म क्या क्या है, ये है एक y टर्म, ये है एक y टर्म, बस इतना ही है। तो इनको 0 कर देना है। इसमें से y का कोफिशिएंट क्या है बेटा 2k प्लस 4, इसको 0 कर दो तो y 0 हो जाएगा ऑटोमेटिक। और क्या करना है अपने को, कांस्टेंट टर्म को गायब करना है। कांस्टेंट ये है, कांस्टेंट ये है, कांस्टेंट ये है, इसको भी गायब करना है। k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8h माइनस 2, इसको 0 कर देना है। यहाँ से k आ जाएगा माइनस 2 और k क्या बोलो वहाँ डालेंगे तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 8 प्लस 8h माइनस 2 इक्वल टू 0। और 8h क्या बन जाएगा अपना
10 6 6 एज बन जाएगा 3/4। अगर मैंने सही किया तो कैलकुलेशन चेक कर लो। तो अपना कहाँ शिफ्ट करना है, 3/4 कमा -2। अच्छा ऑप्शन तो है, मतलब सही होना चाहिए ऑप्शन है, फिर भी चेक कर लो। ঠিক আছে তো। फिर नेक्स्ट वाला चलते हैं। এই এক্সারসাইজটা ভালো আছে না, অঙ্কগুলো ছোট ছোট অঙ্ক আছে, চাপ নেই না, আস্তে আস্তে চাপ, প্রথম দিকে তো কোঅর্ডিনেট টোর্ডিনেট যেসব করবে আস্তে আস্তে हल्का हो जाए। स्टेट लाइन में थोड़ा बहुत रह सकता है, लेकिन धीरे धीरे हल्का हो जाएगा। और যে জিনিসটা পুরো নতুন তো একটু তো সময় লাগবে। নাম্বার 2, if the square ABCD where ABCD undergoes the following three transformation, पहले ये करना होगा आपने को, फिर ये 3 बार, जैसे वो लोग बोला ऐसे चेंज करना होगा। पहले क्या करेंगे, XY को YX बना देंगे, फिर ये करेंगे। तो पहले मैं इसको एक बार बनाने के बाद जो फिगर बनेगा वो क्या बनेगा बोला है, तो पहले मैं एक बार फिगर को ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि दीज आर वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स, ठीक है ना। 0 0, तो अपने को फिगर दिख जाएगा 0 2 2 0 और 2 2। ये अपना फिगर है, ये अपना पहले रेक्टेंगल था। अभी एक एक करके ट्रांसफर करते हैं हम। अभी तो इंकी मेरे पास कोई टेंशन नहीं, डिफरेंट टाइप का कलर है, हम तो कितना कलर कॉम्बिनेशन लगा देंगे, क्या ना उल्टा लिखेছি। ও ভালো। टू जीरो। चलो सबसे पहले क्या करने बोला है, सबसे पहले ये वाला करने बोला है। इसमें क्या करना है, x को y बनाना है, y को x बनाना है। तो हम लोग इसको काट के 0 0 हो गया। पहले लिखते हैं हम लोग क्या होता है, तो मत देखना कि अरे यहाँ कैसे 0 2 हो गया, वो हम लोग दूसरा बार बनाएंगे। पहले इसको चेंज कर लेते क्या होगा, जो नया आएगा उसको हम लोग प्लॉट करके देखेंगे। इसको चेंज किया तो 2 2, इसको भी चेंज किया तो 2 2। चलो पहला शिफ्टिंग हो गया। नेक्स्ट क्या करने बोला है, नेक्स्ट बोला ऐसे शिफ्ट करो, y तो y रहेगा, x में क्या हो जाएगा, x प्लस 3y बन जाएगा। तो ये तो जो भी करो ये 0 0 ही रहेगा। इसको चेंज किया, y तो y रहेगा, x क्या करने बोला है, x प्लस 3y, 0 प्लस 3 इंटू 2, ठीक है ना, 3 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा ये 6। तो ये क्या बन गया 6,2 बन गया। ये समझ में आया। दूसरा वाला में क्या होगा, y तो 2 रह गया और ये बनेगा x प्लस 3y, 2 प्लस 3 इंटू 2 6 8। समझ में आया, 2 प्लस 3 इंटू y, ये क्या तो कितना है 8। यहाँ पर y तो y रह गया, x क्या हो गया 2 प्लस 0 इंटू 3, तो 2 ही रह गया। और एक ट्रांसफॉर्मेशन है लास्ट वाला में क्या करना बोला है कि x माइनस पहला वाला होगा इन दोनों का डिफरेंस करके डिवाइड बाई 2 0, फिर दोनों का प्लस करके, पहले इन दोनों का डिफरेंस करके डिवाइड बाई 2 2 प्लस करके 4, फिर डिफरेंस करके डिवाइड बाई 2 8 माइनस 6 4 ना, प्लस करके डिवाइड बाई 2 5, फिर क्या हो गया डिफरेंस करके डिवाइड बाई 2 1, प्लस करके डिवाइड बाई ये भी 1। ठीक है, अब इसको बनाते हैं, देखते हैं इसका शक्ल कैसा होता है। 0 0 में 1 है, या फिर तुम डिस्टेंस मतलब ABCD करके आगे तुम डिस्टेंस निकालो, AB BC CD वो करके भी देख सकते हो, रेक्टेंगल है स्क्वायर है क्या है, चारों सेम होगा, डायगोनल आलू होगा, या फिर तुम बना के भी देख सकते हो तुम्हारे ऊपर, ठीक है ना। ABCD करके तुम डिस्टेंस निकालो, सबका सबका अगर सेम हो गया तो रोम्बस या फिर स्क्वायर होगा, फिर डायगोनल देखो, ऑपोजिट ऑपोजिट सेम होगा तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल होगा, ऐसे करके देखना है। या फिर ड्रॉ करके देख सकते हो 1 1 कहाँ होगा, ये हो गया 1 1। फिर कहाँ है, थोड़ा आइडिया करके ड्राइंग करना होगा, 2,4 अगर ड्राइंग में जा रहे हैं। फिर 4,5
इसको जोड़ते हैं। पहले 0 0 से 2,4, फिर 2,4 से 4,5, 4,5 से 1 1। ये तो एक लाइन में हो गया, एक लाइन में नहीं होना चाहिए। मतलब मुझे जो फील आ रहा है पैरेललोग्राम का थोड़ा सा फील आ रहा है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा तब हो जाएगा। स्टेप का कुछ लग रहा है तो तुम कर लेना, अगर हो गया तो हो गया, नहीं तो तुमको करना होगा, ठीक है ना। डिस्टेंस निकालना होगा, पहले इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालो 0 0 1, फिर इन दोनों के बीच में निकालो, फिर इन दोनों के बीच में, इन दोनों के ऑपोजिट सेम हो गया तो पैरेललोग्राम या फिर रेक्टेंगल। इन दोनों में से अगर तुमको कंपेयर करना है तो फिर क्या डायगोनल देखना पड़ेगा। अगर डायगोनल सेम हो गया तो रेक्टेंगल, नहीं हुआ तो पैरेललोग्राम। अपना तो लग रहा है पैरेललोग्राम, बाकी तो कुछ लग नहीं रहा है जो फिगर में है, ठीक है ना। क्लियर है? डिस्टेंस बना के देखो, ड्राइंग करके देखो, तुम्हारी ड्राइंग में थोड़ा एक्यूरेट होना पड़ेगा, नहीं तो फिगर नहीं बनेगा। अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा कर लेना, ठीक है। ठीक है ना। ए बी निकालो, ए बी कितना होगा √2, फिर डी सी निकालो, डी सी भी √2, नहीं डी सी कितना हो जाएगा, हाँ डी सी तो √2 হচ্ছে না, তো ভুল করলাম নাকি কোনোটা এখানে, নাহলে তো কোনো শেপ আসবে না। आइदर सब सेम होगा या तो उल्टा सेम होना पड़ेगा, नहीं तो ड्राइंग में नहीं है। এটা চেক করো, আরে চেক করা তো বন্ধ। প্রথম তো উল্টা, হ্যাঁ √5 ना, আর তোমার ए बी तो √2 হচ্ছে, तो कैसे सेम होगा। अच्छा, और कुछ ज़्यादा ही ड्राइंग खराब हो गया क्या अपना। AD 16, अच्छा √20, और BD 4, ना ना कुछ डिजास्टर हुआ है बीच में। पहले वैल्यू चेंज करना पड़ा, 0 0 0 2 2 2 0 0, फिर क्या करने बोले, x + 3y y x + 3y, ये तो ही रहेगा x + 0 0 0। कहाँ था ये, वाइट से ये वाला 2 था, x + 3 × 3 2 6 6,2, सही है। फिर था 2 3 + 2 + 3 2 6 6 + 2 8, ठीक है। ये था 0 x + 3 × 0 2 + 3 × 0, दोनों माइनस करके 2, दोनों प्लस करके 2, माइनस करके प्लस करके, माइनस किया तो और वही x, 0 x, y के तो x + 3y, 5। হ্যাঁ নতুনটা, না না নতুনটা, এটা যেটা আসার পরে নতুন যেটা আসবে, আর একটা পরে একটা, তো अभी तो नया x y ये हो गया ना, व्हाइट वाला हो गया। 6 - 2 4/2 2, 6 + 2 8/2 4, हैं हाँ 8, तो 8 - 6 को तो 3, 8 - 2 6, 6/2 is 3, 4,8 10, 2 - 0 2, हाँ ये 3 हो जाएगा। इसलिए अपना नहीं आ रहा था, तो ज़्यादा ही हो गया। এবার ড্রয়িংটাও ভুল হবে, এবার হয়ে যাবে এটা √2, अब ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये भी √2 हो जाएगा और ये भी 20 हो जाएगा वीडियो 2, अच्छा 20, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बचा है, ये तो डायरेक्ट आ जाता है, इसका कोई जरूरत नहीं है, शायद ये वाला था। ये हमने थ्योरी में कर लिया था ना, याद आया। मैंने क्या बोला था, ये वाला फॉर्मेट अगर ये वाला शेप ले रहा है तो मतलब ये पेयर ऑफ लाइन बन रहा है, क्योंकि पेयर ऑफ लाइन में यही मेन चीज होता है, इसका नहीं चाहिए होता है, ठीक है ना। तो मतलब डेल्टा = 0 होना ही पड़ेगा, तो डेल्टा = 0 किस में है, ये डेल्टा है, ABC + 2
एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर बी जी स्क्वायर सी एच स्क्वायर। ठीक है, तो डायरेक्ट थ्योरम में है। ठीक है, तो इसमें और एक एक्सरसाइज होगा।